Hello class, welcome back to the study studio. Today we are going to study about the principles of scientific management. ये principles किसने दिए, क्यों दिए, we will see. These principles were given by Frederick Taylor. He is also known as the father of scientific management. क्यों इनको father of scientific management कहा जाता है? First of all, he was a mathematical engineer, American mathematical engineer. He had worked under many industries, factories as an apprentice. Then, after his struggling, he became the manager of one of the steel company. There he realized to do changes in industrial pattern. He has given principles, and from that day only he is known as the father of scientific management. He has given many principles regarding owners, regarding human relations. Now, there are mainly two classes important in business organization. The one is owner and the another is worker. Owner, who are the managers of the company, and workers, who are considered to be the employees of the company. To maintain the relation between these two classes, it is very much necessary to maintain harmony among the organization. Now, how you will maintain that harmony? ना ज़्यादा तुम्हें स्ट्रिक्ट होना है, ना ज़्यादा तुम्हें फ्लेक्सिबल होना है, तो तुम मेंटेन कैसे करोगे? सो दीज प्रिंसिपल्स and this person suggest that how you can maintain the harmony between these classes and can achieve the objectives of the business. Meaning, it is the mental revolution on the part of particular unit of employees in factory. It is a totally mental revolution towards the task, duties, colleagues and owner. ये एक mental revolution है किसके बीच में? पर्टिकुलर यूनिट के एम्प्लॉयज़ के बीच में. ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है? उनके टास्क, वो क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कलीग्स के साथ रिलेशंस, कलीग्स यानी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ओनर्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं. इसकी डेफिनेशन जो फेडरिक टेलर ने दी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज knowing exactly what you want your men to do and then see to it that they do it in a best and cheapest way. Now ये डेफिनेशन का मतलब हम समझेंगे. knowing exactly what you want your men to do. सपोज यू आर अ मैनेजर और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे वर्कर, मैन यानी वर्कर से क्या काम करवाना है. अगर तुम्हें वही नहीं पता होगा तो तुम उसको ऑर्डर्स क्या दोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग एग्जैक्टली, तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, तुम्हें अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है. एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. तुम्हें पता तो है कि तुम्हें क्या करवाना है, लेकिन सिर्फ यही पता होना ज़रूरी नहीं है. जब तुमने ऑर्डर्स दे दिए उनको, तब तुम्हें ये देखना भी पड़ेगा कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं वो काम करने में. आई अगेन रिपीट दैट डेफिनेशन. knowing exactly what you want your men to do and then see to it that they do it in a best and cheapest way. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं, हम देखेंगे अभी. साइंटिफिक मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड कि हम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए. एनालाइज करेंगे हर वर्क को, एनालाइज करेंगे हर वर्कर को. देन हम बेस्ट जो भी हमें मिला है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड. सेकेंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. नथिंग इज पॉसिबल without planning, without implementation. Planning is the first stage of management, right? As we have seen in earlier chapter, that planning is very much necessary for each and every organizations. In the same way, here also planning is the must. Now question arise that who will plan? Planning कौन करेगा और implement कौन करेगा? It is but obvious that the top level managers are going to plan about each and every worker that who will do the what work, and workers are supposed to follow that plan and implement the orders of the top level management. So here the planning function is done by top level manager or those who are managers of the company at the top level, and secondly implementation is done by the workers who are considered to be the employees of the company.
Third, job analysis. Now you will analyze the job, that everything is going proper or not. For that you have to study about deeply about time study, motion study and fatigue study. These all studies are mentioned in further slides. We will study it in that slides. Then standardization. मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये नाम कभी सुना होगा तुम लोगों ने. दैट स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना. वैसे ही कंपनी में स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वर्क. फॉर एग्जांपल कि मैंने तुम लोग को टाइम दे दिया 5 आवर्स में तुम्हारा इतना काम हो जाना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड बन गया कि 5 आवर्स स्टैंडर्ड्स है और उतना काम तुम्हें करके ही देना है. उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, तो तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मैंने पहले से एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करके रखा है और मैंने तुम्हें बोल दिया कि ऐसा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए सेम, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड सेट करना, जिससे होगा क्या कि एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस मिलेंगे कि उनको कैसे काम करना है, किस वे में काम करना है, और स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे तो हमें हमारा काम ईजीली होता जाएगा. फिफ्थ, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. दैट मीन्स ऐसे ही किसी भी एम्प्लॉयज़ को हमें सिलेक्ट नहीं करना है. वैकेंसी है तो कर दिया सिलेक्ट, वैसा नहीं होना चाहिए. हमें क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, क्या उतने सैलरी में वो एम्प्लॉय हमारे लिए काम करने के लिए रेडी है, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन. राइट टाइम, राइट पोजीशन, राइट क्वालिफ़िकेशन, राइट डिग्री, तो वो सब चीज़ें साइंटिफिक सिलेक्शन में आती है. नाउ साइंटिफिक ट्रेनिंग मीन्स कि जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो एम्प्लॉय, तुमने उनकी क्वालिफ़िकेशंस, पोजीशंस, वो सब कुछ देख के सिलेक्शन कर दिया. नाउ ट्रेनिंग, इफ़ योर एम्प्लॉयज़ आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू डू वर्क, you are bound to provide them training which makes them efficient to do their work. So training is very much necessary. If your employees are facing some kinds of problems, you need to provide them training. Financial motivation, इसको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. दैट तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें वो काम अच्छा नहीं लगता, बट वो उन्होंने तुम्हें बोला कि हम तुम्हें 50 रुपीज़ देंगे, 100 रुपीज़ देंगे, या तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर देंगे इस महीने, तो तुम वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ समवन इज़ डूइंग सम बेटर वर्क और having taking some initiative to do work and that initiative works, then those employees are provided with financial incentives. That means they are provided with bonus, एक्स्ट्रा सैलरी. अगर कोई एक्स्ट्रा आवर्स के लिए वर्क कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा रुपीज़ देना, एक्स्ट्रा सैलरी देना. तो ये सारी चीज़ें आती है फाइनेंशियल मोटिवेशन में, जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं दैट हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, या अच्छा काम मिलेंगे तो हमें मोटिवेशंस मिलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तरह. सो दे आर नोन एज फाइनेंशियल मोटिवेशन विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू डू द बेटर वर्क. सेवेंथ, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल यानी चीपेस्ट वे में हमें हमारा वर्क करना है. इफ़ आर एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, देन दे विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश एंड दे विल यूज़ optimum utilization of resources which will make our production cheaper and which will ultimately result to the maximization of profit. Now mental revolution. Mental revolution means maintaining the harmony between the owner and the worker to obey each and other feelings, to respect each and other. It reduces the stress between the owner and the workers, which will ultimately maintain the harmony in the organization and each and everyone can do their work peacefully. I hope all these 8 principles are clear to you. I repeat again all these principles: scientific method, planning and implementation, job analysis, standardization, scientific selection and training, financial motivation, economical and mental evolution. नाउ थर्ड जो पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जॉब एनालिसिस, उसको हम डीपली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी. टाइम स्टडी, इससे नाम से ही पता चल रहा है दैट इट विल स्टडी रिगार्डिंग द टाइम.
It is useful for making optimum utilization of equipments as well as men. कैसे तुम टाइमली सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हें स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि तुम्हें पर्टिकुलर टाइम पे इतना काम करना है। तुम अगर इतना काम करोगे तो तुम अच्छे या एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ गिने जाओगे। सो योर टाइम बेस्ड स्टडी इज़ डन दैट हाउ इन एट व्हाट टाइम यू कैन डू द वर्क। स्टैंडर्ड भी वही हिसाब से सेट होते हैं दैट ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एफिशिएंट एंड वीक वर्कर्स दोनों को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी ऑफ strong as well as weak worker we make standard time and that we give to our employees to complete that particular work on standard times. Then motion study here means that to remove unnecessary motion, that is movement of the employees and equipments to do the work fastly. मोशन स्टडी का मतलब कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसको मूव करना। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 आवर्स है टाइम, तुम्हारा वर्किंग आवर 10 आवर्स है, उसमें 1 आवर तुम्हें रेस्ट टाइम मिल रहा है, फिर भी बाकी के 9 आवर्स तुम टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट्स तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिमूव करेगी। या तुम्हारे अंडर कोई काम कर रहा है और वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है या बाकी के टाइम में टाइम पास कर रहा है, तो तुम्हें देखना है कि तुम उसके काम को कैसे बढ़ा सकते हो और उसके जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। या तो तुम बीच में कुछ सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो विच गिव्स देम मोटिवेशन टू डू देयर वर्क, या तुम कुछ भी और कर सकते हो जिससे तुम्हारे वर्कर्स मोटिवेटेड रहे और उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। अब उसका मीनिंग देख लेते हैं हम। इट मीन्स टू रिमूव वेस्टेज विच ऑकर्स ड्यू टू अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, उसका मतलब हर एक जन को सेम सैलरी नहीं दी जाएगी। जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको ज़्यादा सैलरी, जो कम एफिशिएंट है उसको कम सैलरी। इसका बेसिक रीज़न क्या है? डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम यानी सबको अलग अलग सैलरी देने का मतलब, वेजेस देने का मतलब क्या है? दैट इफ़ मुझसे ज़्यादा किसी और को सैलरी मिल रही है, मुझे थोड़ी बहुत जेलसी होगी, मैं वही चीज़ जो उसने इम्प्लीमेंट की है मैं खुद इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करूँगी बिकॉज मुझे भी सैलरी ज़्यादा चाहिए। सो दिस मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर टू अर्न मोर। नाउ हियर यहाँ पे पर्टिकुलरली किस बेसिस पे दिया है दैट इफ़ देर आर 5 आवर्स, इफ़ वन पर्सन इज़ प्रोड्यूसिंग 500 products in that particular 5 hours, then he is given more incentives than the person who is producing 400 products in that particular 5 hours. So जितना कम टाइम में जो जन ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। It is basically introduced to motivate other workers so that उनको भी ऐसा लगे कि उसको ज़्यादा मिल रहा है तो मैं भी ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा अर्न करूँ। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। मोर एफिशिएंट वर्कर शुड गेट मोर वेजेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और किसके टर्म्स में? प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में। क्वालिटी यहाँ पे नहीं दी गई है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बोला गया है, यानी जो ज़्यादा काम करेगा उसको। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रेडरिक टेलर। Frederick Taylor, then he is also known as the father of scientific management. He was an American mathematical engineer and he has worked as an apprentice in many factory and industries. Its meaning, definition, principles, 8 principles are there, techniques, then time study, motion study and differential wage rate study. I hope all these topics are clear to you. In next topic we will study about Henry Fayol. Today we have completed Frederick Taylor. Now we are going to see about Henry Fayol. Okay, thank you class for watching this video.